ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. پتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. دیکھیے بولنے کا تو من نہیں ہے، لیکن آپ کی سماعت کو دیکھ کر تھوڑی دیر بولنے کی جسارت کر رہا ہوں. علماء کرام کا بھرپور توجہ چاہوں گا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور علماء کرام کے نورانی چہرے کو دیکھ کر ایک شعر پیش کر رہا ہوں. پیشگی میں کہہ دے سبحان اللہ کہ ہر طرف اجالا ہے آمنہ کے آنگن میں. ہر طرف اجالا ہے آمنہ کے آنگن میں. ارے نور آنے والا ہے آمنہ کے آنگن میں. نور آنے والا ہے آمنہ کے آنگن میں. حضرات آج یہاں آپ بیٹھے ہیں، یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے. دوستو دنیا میں ہم بھی تشریف لائے، آپ بھی تشریف لائے، سب لوگ دنیا میں تشریف لائے. حضرات غور کرو، دنیا میں دو طرح کے لوگ پیدا ہوئے، دو طرح کے لوگ دنیا میں تشریف لائے. کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی پیدا ہوئے کہ پیدا ہونے کے بعد مر گئے، مٹ گئے، چلے گئے. کوئی یاد کرنے والا نہیں، کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی ان کا ذکر کرنے والا نہیں. آپ دیکھیں فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. ابو لہب کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. ابو جہل کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. آپ بتائیں ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی نام لینے والا، ہے کوئی ذکر کرنے والا، ہے کوئی ان کے یاد میں محفل سجانے والا؟ حضرات یہ ایک ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں آئے، رہے، بسے، چل گئے. کوئی یاد کرنے والا نہیں، کوئی ذکر کرنے والا نہیں. لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی پیدا ہوئے کہ گزرے ہوئے برسوں ہو گئے ہیں، لیکن زمانہ جیسے کل یاد کر رہا ہے ویسے آج یاد کر رہا ہے. زمانہ جیسے کل ذکر کر رہا تھا آج اسی طرح ذکر کر رہا ہے. حضرات غور کرو، فرعون کو کوئی یاد نہیں کرتا، نمرود کو کوئی یاد نہیں کرتا، شداد کو کوئی یاد نہیں کرتا. لیکن جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے حسین کو زمانہ یاد کرتا ہے. جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے حسین کو زمانہ یاد کرتا ہے. جیسے ہی چاند کی 6 تاریخ آتی ہے غوث اعظم کو زمانہ یاد کرتا ہے. جیسے ہی چاند کی 11ویں تاریخ آتی ہے غریب رقص، جیسے ہی چاند کی 11ویں تاریخ آتی ہے حضرت پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی کو زمانہ یاد کرتا ہے. حضرات ادھر دیکھیں، بات سمجھتے جائیں آخر معاملہ کیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے. فرعون بھی دنیا میں آئے، اسے کوئی یاد نہیں کرتا. نمرود بھی دنیا میں آیا، اسے کوئی یاد نہیں کرتا. لیکن غوث اعظم کو زمانہ یاد کرنا ہے، غریب نواز کو زمانہ یاد کرنا ہے، حسین کو زمانہ یاد کر رہا ہے. تو آخر بات کیا ہے؟ تو غور کرو دوستو میرے جملے پر. جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو زنا کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو لوٹری کاٹ کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو ماں باپ کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے. لیکن آؤ جو اللہ کی محبت میں مرتا ہے، جو رسول کی محبت میں مرتا ہے، جو غوث کی محبت میں مرتا ہے، جو نماز کی محبت میں مرتا ہے، جو روزہ کی محبت میں مرتا ہے، ارے زمانہ کہتا ہے کہ یہ مر گیا، خدا کا قرآن کہتا ہے کہ یہ زندہ ہو گیا.
आवाज आप बखूबी देख रहे हैं, लेकिन आवाज पर ना जाए। नबी से अगर इश्क है तो नबी की तारीफ पर जाए, नबी के नाम पर जाए, खुदा के नाम पर जाए। जो हाथ खुदा और खुदा के रसूल पर उड़ जाता है, उनके नाम पर उड़ जाता है, कसम खुदा की रब ताला ऐसे हाथ में कभी भी बीमारी नहीं देता। इसीलिए यहाँ से लेकर वहां तक नबी के नाम पर हाथ उठाकर कह दे सुबहान अल्लाह और मचल कर कहे या रसूल अल्लाह। हज़रात हाथ उठा कर रहे हैं, हाथ उठा कर रहे हैं। उलमाए किराम इन्हें देखें, ये लोग हाथ उठाकर नबी का जिक्र सुन रहे हैं, ये लोग हाथ उठाकर नबी की महफिल में बैठे हैं, ये लोग हाथ उठाकर नबी के जिक्र में बैठे हैं। ए रोलाई वालों, आज तूने जिस नबी के नाम पर हाथ उठाया है, अरे दुनिया की कुर्सी मिले या ना मिले, अरे जन्नत की कुर्सी तुम्हें जरूर मिल जाएगी। नबी से मोहब्बत कीजिए, आका से मोहब्बत कीजिए। इसीलिए कि नबी की तारीफ बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने किया है, आला हजरत ने किया है। हजरत दुनिया में कलमकारों की कमी नहीं, दुनिया दे लिखो के कमी ने যে গলিতে যাবেন আপনি লিখক পেয়ে যাবেন। বাংলা বুঝছেন তো? হ্যাঁ, বাংলা যদি বলছেন তো একটা শের আমি বলছি। বাইতুল হারাম লোহ কলম, বাইতুল হারাম লোহ কলম খুশিতে ঝুমেছে। আরে আজ ভোরে আমিনার ঘরে নূর এসেছে। जवाब दे, अरे जवाब दे ना। नूर এসেছে। আজকে ওলামা একরামরাও মোনায়ে তশরিফ নিয়ে এসেছে। বলুন সুবহানাল্লাহ, উচ্চ স্বরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বাইতুল হারাম লোহ কলম খুশিতে ঝুমেছে। আজ ভোরে আমিনার ঘরে নূর এসেছে। ও আমিনা, ও হালিমা, তোমার ঘরে কে এসেছে দেখো না। আরে দিনের নবী কামলিওয়ালা, আরে তাজদারে ওই মদিনা। দিনের নবী কামলিওয়ালা, তাজদারে ওই মদিনা। তো লিখকের কমি নেই। हजरत दुनिया में कलमकारों की कमी नहीं, उलमा इकराम मौजूद है। इनसे पूछिए, आला हजरत की शायरी लाजवाब, आला हजरत का तरीका लाजवाब। हजरत आप गौर करें, दुनिया में कलमकारों की कमी नहीं, लेकिन जब कोई कलमकार ने कलम उठाया तो लैला का जिक्र किया, जब कोई कलमकार ने कलम उठाया तो मजनू का जिक्र किया, जब कोई कलमकार ने कलम उठाया तो शीरी का जिक्र किया, जब कोई कलमकार ने कलम उठाया तो फरहाद का जिक्र किया। लेकिन कुर्बान जाओ, बरेली के ताजदार इश्क व मोहब्बत आला हजरत सुन्नियत की जान, बरेलियत की पहचान, इल्म के चट्टान अलैहि रहमत व रिजवान, जुल इल्म व इरफान अलैहि रहमत व रिजवान ने जब जब कलम उठाया है तो किसी दुनियादार का जिक्र नहीं किया। अरे बरेली के ताजदार ने जब जब कलम उठाया है तो मदीने के अहमद मुख्तार का जिक्र किया है। इसीलिए नबी से तारीफ करना बरेली के आला हजरत ने सिखाया है, बरेली के आला ने सिखाया है। बरेली के आला हजरत ने जब जब कलम उठाया तो किसी दुनियादार का जिक्र नहीं किया, मदीने के ताजदार का जिक्र किया। अब गौर करो रोयाई वालों, बरेली के ताजदार ने जब कलम उठाया है, सामने नबी की चेहरा अक़दस है, तो बरेली के आला हजरत ने लिखा नबी का चेहरा लाजवाब। बरेली के आला हजरत ने कलम उठाया, सामने नबी के दंदाने मुबारक है, तो बरेली के ताजदार ने कहा, बरेली के ताजदार ने कहा, आला हजरत ने कहा नबी के दंदाने
मुबारक लाजवाब, जब बरेली के ताजदार ने कलम उठाया है सामने नबी के दस्ते मुबारक है, तो आला हजरत ने कहा नबी के दस्ते मुबारक लाजवाब। ऐ सुन्नियों, अगर इश्क नबी है दिल में तो जुमला नोट करो। बरेली के ताजदार ने जब नबी के सर के बाल से लेकर पैर तक नजर किया तो सब कुछ के बारे में कहा लाजवाब है, हाथ लाजवाब है, दंदान लाजवाब है, दस्त लाजवाब है, चेहरा लाजवाब है। बरेली के ताजदार ने कहा या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आवाज साथ नहीं देते इसीलिए माजरत चाह रहा था, लेकिन रोनाई मेरी पड़ोस में, रोनाई मेरा पड़ोसन है, ये गांव बगल वाले गांव है। ये लोग देख कर कहेंगे मौलाना साहब आए तो रोटी गोश्त तो खा लिए, साथ में नजराना भी ले लिए, लेकिन कुछ सुनाए नहीं। ऐसा नहीं है ना भाई। अरे नौजवानों, तुम मुकद्दर पर नाज करो, तुम अपने मुकद्दर पर नाज करो, इसीलिए कि आज की महफिल में दुनिया वाला खुश हो या ना हो, ए रुनाई के नौजवानों, तेरी आज की इस महफिल में मदीने वाले मुस्तफा जरूर खुश हो जाएंगे, मदीने वाले आका लोग खुश हो जाएंगे। इसीलिए रुनाई वालों, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने जमीन दी है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने शोहरत दिया है, तो पार के जाकर पैसे को खर्च मत करो। अल्लाह ने माल दिया है तो बड़े बड़े शहर जाकर उसको खर्च मत करो। अल्लाह ने माल दिया है तो संभाल कर रखो। ए रुनाई की माँ बहनों, आप भी सुनो, अगर अल्लाह ने माल दिया है तो शोहर से कहना, ए मेरे शोहर, मैं आगरा देखना नहीं चाहती, मैं दिल्ली घूमना नहीं चाहती, मैं अजमेर घूमना नहीं चाहती, मैं कचौचा जाना नहीं चाहती, मैं किसी भी मॉल पर जाना नहीं चाहती। ऐ मेरे शोहर, अगर आप चाहते हैं तो उसी पैसे को जमा करके रखें और मुझे सरकार का मदीना दिखा दे। उसी पैसे को जमा करके सरकार का मदीना देख ले, सरकार का रोजा देख ले, सरकार का मदीना देख ले, सरकार का बांग्ला भी। अच्छा, इंशाअल्लाह बांग्ला भी अगर जरूरत पड़े तो मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ। अरे अगर आपकी समाज अच्छी हो तो मैं उड़िया भी बोल सकता हूँ, ये बांग्ला नहीं है, लेकिन आवाज जो है मेरी वो डैमेज हो गई है, इसीलिए आवाज पर मत जाओ। एक बार पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, और मचल कर कहें या रसूल अल्लाह। सरकार की माँ, सरकार की माँ तैयबा ताहिरा पाकिज़ा आरिफा सैयदा आमना खातून फरमाती है, जब मेरे बच्चा, मेरा मोहम्मद, मेरा बच्चा, मेरा बेटा जब पैदा हुआ, दुनिया का बेटा, दुनिया का लड़का जब पैदा होता है, माओ से पूछो, बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही बच्चा क्या तलाश करता है? सबसे पहले माँ की दूध तलाश करता है, सबसे पहले माँ की मोहब्बत तलाश करता है, सबसे पहले माँ की शफकत तलाश करता है। दुनिया का बच्चा जब पैदा हो तो सबसे पहले माँ की दूध तलाश करे, माँ की ममता तलाश करे, माँ की शफकत तलाश करे। लेकिन ऐ दीवाना, ऐ रसूल, ऐ मनाने वालों, जरा गौर करो, आमना खातून फरमाती है, जब मेरे नबी तशरीफ लाए, जब मेरे आका तशरीफ लाए, जब नबी दुनिया में आए, जब माँ आमना के गोद में आए, तो आमना फरमाती है कि मेरे नबी ने पहले दूध नहीं तलाशा, मेरे नबी ने शफकत नहीं तलाशा, मेरे नबी ने रफ़त नहीं तलाशा। अगर सबसे पहले मेरे नबी ने दुनिया में आकर कोई काम किया है तो रब की बारगाह में सजदे में चले गए हैं। सबसे पहले सजदे में गए और दुनिया वाले को पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों सुनो, ऐ नबी पर मरने वालों सुनो, ऐ खुदा खुदा कहने वालों सुनो, माल के पीछे मत जाओ, दौलत के पीछे मत जाओ, जमीन के पहले पीछे मत जाओ, शोहरत के पीछे मत जाओ। अगर जाना है तो खुदा की सजदे के पास कब जाओ, खुदा की सजदे की बारगाह में जाओ, रब की बारगाह में सजदा करो, रब की बारगाह में नमाजें पढ़ो, रब की बारगाह में रोजा रखो।
रब की बारगाह में कुरान की तिलावत करो। अगर सजदे में सजदा करते करते अगर मौत हो जाए तो कसम खुदा की ये दुनिया भी आबाद और मरने के बाद जन्नत वाजिब हो जाएगी। इसीलिए बड़ी अफसोस का मकाम है कि आज हमारे जैसे रमजान खुदा साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छे, हमारे उलमा इकराम जितने यहाँ बैठे हैं सब अच्छे, जब इंग्लिश की बारी आती है ट्यूशन पढ़ाने को तो 1000 निकल जाता है, लेकिन जब यही कुरान शरीफ की तालीम देने के लिए कहा जाता है, जब इमाम साहब ने कह दिया कि कुरान की तालीम ट्यूशन पढ़ाएंगे तुम्हारे बच्चे बच्चियों को 1000 रुपया लगेगा, तो उस वक्त लोग कहते हैं मौलाना डिमांड कर रहा है, मौलाना मांग रहा है, खाना दे रहा हूँ, पाली दे रहा हूँ, तनख्वाह दे रहा हूँ, फिर भी वो पैसे जो बच्चे को तालीम दे रहे हैं उसके लिए वो पैसा मांग रहे हैं। ए मेरे नोराई की सरजमीन के सरजमीन रोनाई में बसने वालों सुन्नी मुसलमानों जरा गौर करो, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। हजरात, आप जो ट्यूशन इंग्लिश वाले के पीछे 1000 रुपया खर्च करते हैं आपको सवाब नहीं मिलेगा। उलमा इकराम से पूछ ले, 1000 रुपया जो आप बंगला ट्यूशन को देते हैं आपको सवाब नहीं मिलेगा। 1000 रुपया जो आप खर्च करते हैं आप अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, कंप्यूटर सिखाने के लिए 1000 जो खर्च करें उसका फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन एक मदरसे के बच्चे, एक इमाम साहब आपके घर में आकर अगर आपके बच्चे को, आपकी बच्चियां को कुरान की तालीम दे, अगर आप 100 रुपया नहीं बल्कि 1000 भी देते हैं तो हदीस पाक कहती है कि कसम खुदा की इस पैसे में जो आप खर्च कर रहे हैं ये दुनिया भी संवर रहा है और आखिरत भी संवर रहा है। लेकिन उल्टे ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद कर लेते हैं दीदार के लिए। मौजूद सामिन हजरात, अमन नबी, अपना नबी, सारा विश्व नबी, कुल कायनातेर दाता जनाबे মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ এমন সময়ে এসেছেন যে সময়ে রাত যাচ্ছিল, যে সময়ে দিন আসছিল, দিন আসতেছিল। আল্লাহর নবী এইরকম সকালে সকালে আমিনার ঘরে মক্কা নগরে নূর নিয়ে নবী তশরিফ নিয়ে এলেন, নূর নিয়ে নবী জন্ম নিলেন। নবী যদি না আসতেন আল্লাহ দুনিয়াকে বানাইতো না, আসমানকে বানাইতো না, আসমানকে সাজাইতো না। আল্লাহ নবী যদি এই পৃথিবীতে না আসতেন তো কসম খোদা কি আমরা আল্লাহর পাতাও পেতাম না, আল্লাহকে আমরা বুঝতাম না, আল্লাহকে আমরা জানতাম না। নামাজ পেলাম আল্লাহর নবীর জন্য, কোরআন পেলাম আল্লাহর নবীর জন্য, সাজদা পেলাম আল্লাহর নবীর জন্য, মা পেলাম আল্লাহর নবীর জন্য, বেটা পেলাম আমার নবীর জন্য। আমার নবী যখন পৃথিবীতে এসেছিলেন রব্বে হাবলি উম্মতি, রব্বে হাবলি উম্মতি, এই আল্লাহ আমার উম্মতকে আমার হেওয়ালে করে দেন। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुशी की बात है, खुशी की बात है, खुशी की बात है। आखिरी बात समाप्त कर ले। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बदमाश लोग, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि जिस दिन नबी तशरीफ लाए उस दिन इंतकाल किए। हाँ सही बात है, उसी दिन दुनिया से गए। लोग कहते हैं आप तो आमद की खुशी मना रहे हैं, लेकिन जाने का गम नहीं कर रहे, जाने का गम नहीं कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, नबूवत अता किया, बोला ए आदम बता तू कौन है। मूसा को पैदा किया, नबूवत अता किया, ए मूसा बता तू कौन है। ईसा को भेजा, अल्लाह ने ईसा को भेजा, अल्लाह ने फरमाया ए ईसा बता तू कौन है। 1,24,000 नबी को दुनिया में भेजा, हर एक नबी को कहा बता तू कौन है। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आमना के गोद में अब्दुल्ला के घर में पैदा हुए तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मोहम्मद बता तू कौन है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया ऐ मोहम्मद आज बताने की जरूरत नहीं, आज कहने की जरूरत नहीं, बल्कि आज अल्लाह बताएगा कि मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है।
आज अल्लाह बताएगा मुस्तफ़ा कौन है और मुस्तफ़ा बताएगा नबी कौन है। इसीलिए उन लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचा देना कि जो लोग इंतकाल हो जाते हैं, जो लोग मर जाते हैं, जो लोग चले जाते हैं, अरे उसका तीजा 40वां मनाया जाता है, और जो जिंदा होते हैं उसका तीजा 40वां नहीं मनाया जाता, उसका तो यौमे मिलाद मनाया जाता है, यौमे मिलाद मनाया जाता है। नबी जिंदा है, नबी जिंदा है, आका जिंदा है, इसीलिए हम लोग उनके लिए यौमे मिलाद मनाते हैं। क्या मनाते हैं? यौमे मिलाद मनाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपकी समात बहुत अच्छी, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं तकरीर करूँगा। यह आपकी मोहब्बत थी जो थोड़ी देर मैं आपके दरमियान आ गया, इसलिए ज़्यादा जब बोल रहा हूँ तो मुझे तकलीफ हो रही है। लगातार जब से चाँद उगा है 12 रबीउल अव्वल का, यह अल्लाह का करम है कि प्रोग्राम ही प्रोग्राम, साथ ही साथ कल नल हाटी में 1 घंटा 45 मिनट मेरी तकरीर हुई आप लोग की दुआ से, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए आवाज़ वहाँ ज़्यादा बैठ गई। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को नबी की सीरत सिखाइए। घर में बैठिए, बच्ची को बुलाइए, बच्चे को बुलाइए, बीबी को बुलाइए, कोई और रिश्तेदार है, बहन है, उनको बुलाइए, और आप खुद तैयार होकर कहें, ए मेरी बेटी बता हमारे नबी के बाप का नाम क्या है। बच्ची कहेगी हमारे नबी की माँ का नाम क्या है, तो आप कहेंगे मेरी बच्ची सुनो, हमारे नबी के बाप का नाम अब्दुल्ला है, माँ का नाम आमिना है, दूध पिलाने वाली औरत का नाम दाई हलीमा है, हमारे नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। इस तरह आप अपने बच्चों को कहेंगे, ए बच्चे बताओ नमाज पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए। छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा है, कहेगा अब्बू जान क्या करना चाहिए। बोला सबसे पहले गुस्ल करना चाहिए, लेकिन गुस्ल में कितने फराइज है, जिसके किए बगैर गुस्ल नहीं होगा, नापाक ही रह जाओगे, और नापाक रहकर अगर सारी जिंदगी तुम नमाज पढ़ते रहोगे, नमाज कबूल नहीं होगी, नमाज कबूल नहीं होगी। इसीलिए मोबाइल के वॉइस क्लिप को ऑन करके दुनिया का गाना मत सुनो, अगर सुनना है तो नबी का फरमान सुनो, मुस्तफा का फरमान सुनो। अपने बच्चे बच्चियों को इसी तरह तैयार करिए, आप खुद तैयार कर लेंगे, आप खुद तैयार कर लेंगे। इसीलिए एक आखिरी बात सुन लो, नबी ने फरमाया अपनी बच्चियों को 3 चीज सिखाओ। सबसे पहली बात यह है कि अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को नबी से मोहब्बत करना सिखाओ, नबी से इश्क करना सिखाओ। दूसरी बात यह है कि जब ये हो जाए तो अपने बच्चियां को कुरान पढ़ने सिखाओ। जब ये हो जाए तो तीसरी बात सुनो, अपनी बच्चियां को क्या सिखाओ। तीसरा पॉइंट क्या बात, तीसरी बात क्या है, वो ये है कि आले रसूल, औलादे रसूल, यानी औलादे रसूल, आले रसूल से मोहब्बत करना सिखाओ। ये 3 चीज अगर आपने अपनी बच्ची को, अपने बच्चों को तालीम दे दिया तो कसम खुदा की वो दिन दूर नहीं, जब आपका इंतकाल होगा, आप जब दुनिया से चले जाएंगे तो वही बच्चियां कुरान पढ़ेगी, वही बच्चे कुरान पढ़ेगा, और कब्र में जाकर कहेगा, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, आज जो कब्र पर लेटा है ये मेरा बाप है, आज जो कब्र पर लेटा है ये मेरी माँ है। ऐ अल्लाह तू उसे जहन्नम में डाल नहीं सकता, इसलिए कि यही जो लेटा है इसी ने मुझे कुरान पढ़ाया है, इसी ने मुझे नमाज सिखाया है, इसी ने मुझे रोजा सिखाया है। कसम खुदा की जब वो बेटा अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा तो बेटे की दुआ से माँ बाप को अल्लाह जन्नत अता करेगा। लेकिन आज हम प्रोग्राम तो करते हैं, जलसे तो करते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी तो 12 रबीउल अव्वल में हो गया, फिर 11वीं शरीफ में होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं। इसीलिए बांग्ला कहता है, क्या कहता है जाना, सुगंधरे भाई जाई ना पावा सकल गाछेर फूले, और कोई
দিলারে ভাই হই না সাদা তাকে হাজার বার ভুলে इसीलिए कोयला मत बनिए नबी का इश्क पैदा किया अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस प्रोग्राम में पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत औलादे हुजूर रईसुल आबिदीन यानी सैयद मोहम्मद सैफुल हुसैन बुखारी जो खानकाए बुखारिया गैसरा शरीफ से चलकर आपकी दायरे मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए हैं। ये बात आखिरी मेरी बात है, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज जो आप यहाँ पर पूरी रात जग रहे ना अल्हम्दुलिल्लाह इसकी गवाही रमज़ानुल हुदा बनेंगे, अल्लामा अरशदुल क़ादरी बनेंगे, हमारे जमशद शायर हैं वो भी बनेंगे, लेकिन कसम खुदा की सबसे बड़ी बात है कि आज की इस रात की गवाही कोई बने या ना बने औलादे रसूल ज़रूर बन जाएंगे। इसीलिए इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला आपने बुलाया तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर होगी। आज आवाज़ भी थोड़ी फंसी थी, आपकी मोहब्बत थी, मैंने बयां किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, पंजगना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, बोलने में, चालने में, समझने समझाने में अगर किसी किस्म की कोई गलती हुई है तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बिन वतूब इलैहि कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु